بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جدید نظام شہر کی قدیم یادگاروں کو کھانے لگا۔ حکومت سندھ نے اسلامیہ کالج کے سامنے قدیم یادگار گلوب کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی فیصلے پر شہریوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے گلوب کو مسمار کرنے سے روکنے کی درخواست کر دی۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جدید نظام شہر کی قدیم یادگاروں کو کھانے لگا۔ حکومت نے اسلامیہ کالج کے سامنے قدیم یادگار گلوب کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ جی ہاں، حکومتی فیصلے پر شہریوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے گلوب کو مسمار کرنے سے روکنے کی درخواست کر دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے احسن عباسی اپنی اس رپورٹ میں۔ سنا تو سب نے ہوگا کہ دنیا گول ہے، اور اسی گول دنیا کے تصور کو مزار قائد کے سامنے اسلامیہ کالج کے پاس حقیقت میں تعمیر کیا گیا، جس کو پاکستان بھر سے لوگ دیکھنے آنے لگے۔ 70، 80، 90 کی دہائی میں بننے والی جو پاکستانی فلمیں تھیں، اس کے کئی گانے بھی اسی گلوب کے سامنے عکس بند کیے گئے۔ اس گلوب کی کیا صورتحال ہے اور اس کا کیا مستقبل ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کئی دہائیوں تک کراچی کی پہچان بننے والی یادگار ماضی کا قصہ بننے کے قریب۔ بہتری سفری سہولیات کے عوض شہر کی ایک مشہور یادگار سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ یہ گلوب ملیر کو جنوب میں ڈاؤن ٹاؤن سے جوڑنے والی زیر تعمیر ریڈ لائن BRT روٹ پر واقع ہے۔ اپنی نوعیت کا منفرد گلوب باضابطہ طور پر اسلامیہ کالج فاؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سن 1964 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ابتدائی طور پر ہلکے نیلے رنگ کا تھا، لیکن ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ایسٹ نے اس کے رنگوں کو گہرا کر دیا اور چند سال قبل اس کے گرد تمام فواروں کو اکھاڑ پھینک دیا گیا، جبکہ دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث اس وقت کوریئرز کا یہ نمونہ خود جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جو پاکستانی فلم سازوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام رہا۔ یہاں 60 اور 80 کی دہائیوں میں وحید مراد، ندیم، کمال اور دیگر سپر سٹار کے گانے فلمائے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دور جدید میں داخل ہونے لگے، ساتھ ہی کئی نئے منصوبے بھی انتظامیہ کی جانب سے پیش کر دیے گئے اور BRT منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا۔ تاہم بدقسمتی سے کوریئرز کے اس نمونے کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 2017 میں آخری بار چیئرمین DMC ایسٹ کی جانب سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی، اور اس کے بعد سے انتظامیہ کی جانب سے اس جگہ کو پلٹ کے نہیں دیکھا گیا، جس کے باعث یہ جنگل کا منظر پیش کرنے لگی جگہ، اور ساتھ ساتھ نشہ کرنے والے افراد اس کو اپنی اماجگاہ بنا بیٹھے۔ بالکل اس کی ایک اہمیت ہے۔ کراچی میں جیسے مختلف مونومنٹس ہیں، اس میں سے یہ ایک گلوب جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ 70s کے دور میں بنا ہوا ہے، جو اس زمانے کے جو لوگ اسلامیہ کالج، داؤ کالج میں جو پڑھتے تھے، وہ ان کے لیے بڑی ایک تاریخی جگہ ہے، اور کراچی کے لیے بھی ایک بڑی تاریخی جگہ ہے۔ وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے تو ایک یادگار ہے وہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ جب بیچ میں بلدیاتی سسٹم 2009 کے بعد جب ختم ہوا تو اس کے بعد بھی اس پہ پھر کوئی اس کی کیئر نہیں کی گئی، اور اس کا جو مینٹیننس کا کام تھا وہ نہیں کیا گیا۔ پھر 2017 میں جب ہم ڈسٹرکٹ چیئرمین آئے تو پھر ہم نے بھی اس کو جو اس کے اطراف کی جو صفائی تھی، کٹنگ تھی، یا جو بھی بیوٹیفیکیشن تھی، وہ ہم لوگوں نے کی۔ برسوں سے انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث یہ حسین یادگار نشہ آور افراد کی اماجگاہ بن کر رہ گئی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں کسی دور میں لوگ تصاویر بنوانے آیا کرتے تھے۔ شہر کی پہچان اس گلوب کے مسمار کرنے کے امکانات نے اداکاروں، مورخین اور فلم شائقین سمیت بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس گلوب سے لاکھوں لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں، اسے مسمار کرنے سے بہتر ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ دیکھیں جی، یہ گلوب ایک تاریخی ورثہ ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ 1964 سے یہ یہاں پہ نصب ہے، اور یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک اس وقت سے ایک یادگار کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے جب یہاں پہ کراچی کی ایک بہترین اور خوبصورت شاہراہ اس کو تصور کیا جاتا تھا۔ نہیں یار، ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ ایک مطلب اس کے کراچی کی پہچان ہے اور بہت پرانا ہے۔ یہاں کی اسلامیہ کالج ہم کسی کو بھی کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ارتھ ہے، ارتھ کے سامنے اسلامیہ کالج، تو یہ بہت پرانا ہے منصوبہ۔ تو اس کو ایسا کہ ریڈ لائن ٹھیک ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے اس کو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہاں سے کہیں اور مطلب اس پہچان کو کہیں اور منتقل کیا جائے، نہ کہ اس کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ کچھ چیزیں شہر کی پہچان بن جاتی ہیں، جس طرح گنبد کا سا ایک نشان بنا ہوا تھا، وہ ریڈیو پاکستان نشان تھا، اور کہا جاتا تھا یہ جو ہے کراچی کی پہچان ہے۔ اسی طرح امپریس مارکیٹ ہے، KMC کی بلڈنگ ہے، یہ کراچی کی پہچان تھی۔ اسی طرح یہ گلوب جو ہے یہ بھی داؤد انجینئرنگ کالج
और इस्लामिया कॉलेज की पहचान है। और ये तभी जैसा आपने कहा कि 1964 से यहाँ पर कायम है, तो ऐसी जगहों को मिसमार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी बन गई इसको हटाना ही है तो किसी और जगह नस्ब किया जाए ताकि ये पहचान जो है कराची की बरकरार रहे। इस ग्लोब को हमारी अगली नस्ल को दिखाने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। ये शहर की पेशानी पर झूमर की तरह है। ये हमें कराची की सकाफती तारीख के बारे में बताता है। ऐसा तारीखी ढांचा अगर किसी और मुल्क में होता तो हुक्काम उसे ज़रूर महफूज कर लेते, लेकिन अफसोस जल्द कराची की पहचान को मिटा दिया जाएगा। इंतजामिया की गफलत के बायस आज इस ग्लोब और उसके अतराफ में हालत जार देख के बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद करते हैं कि मेयर कराची इस तमाम मामले को संजीदगी से लेंगे। रेड लाइन की गुजरगाह में आने वाले इस ग्लोब को बताया जा रहा है कि मसमार कर दिया जाएगा। अवाम चाहते हैं कि इस ग्लोब को इंजीनियर्स की मदद से किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि 65 बरस से जायद की ये याद बरकरार रहे, ना कि मसमार कर दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस और आगा रफीक के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। एक बार फिर से बात करेंगे। ग्लोब अपनी मयाद मुकम्मल कर चुका, किसी और जगह मुंतकिल नहीं कर सकते। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची अली हसन साजिद की सिटी 21 से गुफ्तगू। रुकन सिंध असम्बली मोहिद अनवर का वज़ीर बल्दियात से बात करने का इंतज़ार, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। ये नक्शा यहाँ पे 1967-68 में बनाया गया था। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इसे मुंतकिल किया जा सके। हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने इसका जायजा लिया 2-3 मरतबा, और अभी क्योंकि रेड लाइन के उसमें आ रहा है तो मजबूरी ये है कि स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो गया, अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है कि इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। विरसे की हिफाजत करना, शहर की हिफाजत करना, अपने लोगों की हिफाजत करना, ये सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अब ये रेड लाइन की वजह से भी मैंने सुना है कि ये यहाँ से इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सिटी गवर्नमेंट से भी है और टाउन से भी है कि भाई इसको डिमोलिश नहीं किया जाए, ये तारीखी विरसा है, इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि कराची में स्याह शीशों और पुलिस सारे लगी गाड़ियां दंदनाने लगी। कौन सी कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी है और कौन सी प्राइवेट शख्स की गाड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं। सूरत हाल से शहरी परेशान है। DIG ट्रैफिक ने इस हवाले से कानून नकात भी बता दिए हैं। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। अगर लॉ के खिलाफ है तो बिल्कुल होनी चाहिए, और जस्ट बिकॉज वो लोग गाड़ी में हैं और उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो वो गलत बात है, तो गवर्नमेंट को लेना तो चाहिए। देखिए काले शीशे के अंदर कौन बैठा हुआ है, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, ठीक है, अंदर बैठ के कोई कुछ भी कर रहा हो, तो ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को रोकना तो चाहिए। काले शीशे वाली गाड़ियों को यूँ नहीं होता कि उसमें जो है बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, ना ट्रैफिक वाले उनको रोकते हैं ना ट्रैफिक वाले उनको टोकते हैं। गरीब आदमी मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाले, कोई कमज़ोर सी गाड़ी लेके जा रहा उसको पहले पकड़ते हैं क्योंकि उससे पैसे लेने होते हैं। ये बड़े जो लोग हैं उनसे वो पैसे नहीं लेते हैं, समझे ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनसे पैसे लेंगे तो हमारी वर्दी जाएगी। शहर भर में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दुकानों पर सिक्योरिटी इदारों के स्टिकर्स और मोनोग्राम्स खुले आम दस्तयाब हैं। नंबर प्लेट बनाने वाले और शीशों पर टिंटेड पेपर लगाने वाले ना तो इजाजतनामा तलब करते हैं और ना ही उन्हें कोई रोकने और पूछने वाला है। वैसे कई करा के चले थे, कई दिखाते हैं, कई तो चले जाते। आप लोगों को रोक नहीं, मना नहीं करता कोई, नहीं है यहाँ पे तो बस कर देते हैं। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने रंगीन शीशों, फैंसी नंबर प्लेट्स और पुलिस सायरन का इस्तेमाल करने के हवाले से क्या कवानीन हैं साफ साफ बता दिया। टिंटेड ग्लासेस की बाज़ लोग समझते हैं कि इसकी कोई परमिशन मिलती है, तो आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई परमिशन नहीं मिलती है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये इलीगल है, और अगर कोई भी परमिशन इसकी दिखाता है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि वो एक जाली। इसी तरीके से जो पुलिस की लाइट है वो भी पुलिस के अलावा कोई सरकारी इदारा भी, दूसरा सरकारी इदारा भी वो पुलिस की लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकता। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कराची में रंगीन शीशों और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें चालान के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स कामरान मिनहास और अनुषा जाफरी के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे, बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़राअत को डीरेगुलेट करने की मुखालफत। बिलावल भुट्टो ने कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा कर दिया। कहा ज़राअत मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खतरे में है।
हमें मुश्किल मौसमी हालात में अपने किसानों की मदद करना होगी। बड़े बड़े माफिया, सनतकार और ताजिर साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बराह रास्त किसानों को सब्सिडी देने की तजवीज़ दे दी। हारियों के लिए जदीद ज़राई आलात और मशीनरी की फराहमी जारी रखने का ऐलान भी किया। सिंध के हारियों के लिए एहसन इक़दाम, बिलावल का गरीबों से मोहब्बत का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कराची में बेनजीर हारी कार्ड का इजरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़राअत को डी रेगुलेट करने की मुखालफत भी कर दी। कहा, ज़राअत मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खतरे में है। कराची में हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हम पर दबाव है कि ज़राई शोबे को डीरेगुलेट करें, जबकि इसको मदद की जरूरत है। एक तरफ हमें मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करना है तो दूसरी तरफ किसान की मदद करनी है। बड़े बड़े माफिया, सनतकार और ताजर साजिश कर रहे हैं। आम तौर पे लोग समझते हैं कि हम सिर्फ सैलाब से डरते हैं, हम हर सीजन परेशान हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि डीरेगुलेट के बजाय आप रेगुलेट करें। और आज से ये वादे कर रहे हैं कि आगे जाके जितने भी मुश्किल वक्त होंगे, आपका सिंध हुकूमत सिंध के हारी के साथ हम साथ खड़े होंगे। मेरे खैरपुर के किसान जिनके खजूर को नुकसान पहुंचाया गया है, उनको टारगेट करके माली मदद पहुंचाए ताकि वो नुकसान ओवरकम कर सके। बिलावल भुट्टो ने बराह रास्त किसानों को सब्सिडी देने की तजवीज़ दे दी। हारियों के लिए जदीद ज़राई आलात और मशीनरी की फराहमी जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। बिलावल का कहना था, हमें बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है, अदलिया में इस्लाहात लाएंगे, हम मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अब बात करेंगे, वज़ीर आला सिंध ने फसलों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया है। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह बोले कि हारी कार्ड 25 एकड़ से ज़्यादा बड़े आबादकारों को भी मिलेगा। कार्ड असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कमेटी जारी करेगी। ज़िलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल सतह पर डिविजनल कमिश्नर कमेटियों के सरबराह होंगे। वजारती कमेटी कार्ड के इजरा के अमल की निगरानी करेगी। आज इशू हो रहा है, उसका फिजिकल फॉर्म में यानी कार्ड देख सकते हैं आप, लेकिन इस पे काम तब से शुरू हुआ और इस वक्त तकरीबन 15 लाख हारी जो 25 एकड़ जमीन तक रखते हैं वो रजिस्टर्ड है सिंध गवर्नमेंट के पास। उनको फिजिकली सिर्फ हमने कार्ड देना है। फसल की इंश्योरेंस, हमारे पास ये कुदरती आफात आती हैं, एक साल कुछ आबादी हुई, अगले साल कोई ऐसी कुदरती आफत आ जाती है, कोई सैलाब आ जाता है, पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से बात करके फसल की इंश्योरेंस का भी सिलसिला जारी शुरू करें। और ये फसल की इंश्योरेंस आपको इन कुदरती आफात से, इन इम्तिहानों से कुछ निजात दिलाएगी कि आप उस वक्त इसको इस्तेमाल कर सकें। ये भी इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम में है, इसको जल्द शुरू करेंगे। कहेंगे, सिंध के 26 अजला में खाली बलदियाती नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सजने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। जी हाँ, कराची में कितनी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और कितने कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, तफसीलात जानने के लिए देखिए अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इनमें 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर की नशिस्तें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 77 नशिस्तों के लिए 428 कागजात नामजदगी जमा कराए गए, जबकि शहर के 6 अजला की मुख्तलिफ कैटेगरी की 10 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 96 कागजात नामजदगी वसूल किए गए। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तादाद पर मुबनी फहरिस्त जारी कर दी। जिला जुनूबी यूसी 13 सदर में चेयरमैन की नशिस्त के लिए 14 कागजात नामजदगी जमा हुए। जिला वस्ती यूसी 5 गुलबर्ग में वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 10 कागजात नामजदगी जमा कराए गए, जबकि यूसी 7 लियाकताबाद चेयरमैन की नशिस्त के लिए 11 कागजात नामजदगी वसूल हुए। जिला मलिर यूसी 9 में चेयरमैन की नशिस्त के लिए 8 और यूसी 7 इब्राहिम हैदरी में जनरल वार्ड नंबर 4 की नशिस्त के लिए 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। जिला गरबी यूसी 5 मंगोपीर में जनरल वार्ड की नशिस्त के लिए 5 कागजात नामजदगी वसूल हुए। जिला कोरंगी यूसी 7 कोरंगी में जनरल वार्ड नंबर 1 की नशिस्त के लिए 7 और यूसी 7 मॉडल कॉलोनी में चेयरमैन की नशिस्त के लिए 15 कागजात नामजदगी जमा हुए। यूसी 6 लांडी में
में वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 10 कागजात नामजदगी मौसूल हुए, जबकि जिला किमाड़ी यूसी 10 बल्दिया में जनरल वार्ड की नशिस्त के लिए 8 कागजात नामजदगी जमा किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध भर में ज़िमनी इंतखाबात की 77 खाली नशिस्तों पर 14 नवंबर को पोलिंग होगी।